Hello, let's continue our class with a new topic electric field on equatorial line of an electric dipole। पिछली क्लास 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕੈਰਿੰਗ two charges of opposite polarity but same magnitude. Separation between two charges is 2a. At the center the distance between the charge is a. ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 2a ਆ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ a। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਨ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਹ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ r, ਸਮੋਲ r। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਪੋਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਾਇਪੋਲ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆ। ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਹੈ। P ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ। P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ x ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ PAB। ਜੋ PAB ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ PA ਤੇ PB ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ A, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ A, ਔਰ ਜੋ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ x ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਥੀਟਾ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੈਲ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ? ਆ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EB। ਹੁਣ P ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? EA ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ EA ਆ ਤੇ EB ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਦੈਨ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। EA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ EB ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਵਾਲਾ x ਪਹਿਲੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਚਾਹੇ। EA ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। EA ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਉਂ?
ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ AP ਸਕੁਅਰ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕਿਉਂ AP ਕਿੰਨਾ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ EB ਹੁਣ EB ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ डिस्टेंस कितना होएगा BP स्क्वायर दोनों का मैगनीट्यूड इक्वल है EA इज इक्वल्स टू EB मैगनीट्यूड। हुण असीं इत्थे कैलकुलेट की करना है, असीं रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जो EA है और EB है दोनों ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ EA ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ EB ਨੂੰ ਵੀ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच रिजोल्व कर लेने। हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल कंपोनेंट च रिजोल्व करने लिए असीं की करते हैं जो डायपोल आ इस दे पैरेलल P पॉइंट तो एक एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लेने। ये एक्स एक्सिस आ नैगेटिव वाली एक्स डैश P, ठीक है। हुण देखो आ एंगल थीटा आ वाली लाइन दोनों पैरेलल ने, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दोनों लाइन्स पैरेलल आ एंगल थीटा देन आ एंगल थीटा आ वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इदा होंदा है ना दो पैरेलल लाइन्स एक ट्रांसवर्सल लाइन जो ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल्स। सेम वे दे नाल आ वाला एंगल अगर असीं आ लाइन अगे तक एक्सटेंड करिए इनू एक्स एक्सिस मान लैंदे आ दैन आह ए वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे देन आ वाला एंगल भी आ गया थीटा। जब भी असी एंगल विच रिजोल्व करते हुंदे कंपोनेंट्स विच रिजोल्व करते हैं किसी भी वैक्टर नूं दैन असी ये देखते हुंदे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट किहड़ा। हॉरिजॉन्टल किहड़ा हुंदा जिहदे नाल एंगल बन रहा हुंदा ते वो कंपोनेंट की हुंदा कॉस कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कॉस हुंदा वर्टिकल साइन कंपोनेंट हुंदा जिस नाल एंगल बन रहा हुंदा वो कॉज है जिस दे नाल एंगल मेक हुंदा वो कॉज कंपोनेंट हुंदा। हुण इत्थे EA लई देखो एंगल इस नाल बन रहा तो ये कंपोनेंट की होएगा कॉज कंपोनेंट यानी EA कॉज ऑफ एंगल थीटा। नीचे वाल की होएगा EA साइन थीटा। हुण सेम EB एंगल इहदे नाल बनदा पे की होएगा EB कॉस थीटा उपर वाल की होएगा EB साइन थीटा। इत्थे की है मैगनीट्यूड यूज हुंदा। हुण देखो EB ते EA दा मैगनीट्यूड तां आपां गल कीती है कि सेम है। अगर दोनों का मैगनीट्यूड इक्वल है दैन जो आ EA साइन थीटा है EB साइन थीटा दोनों इक्वल होंगे दोनों का इफैक्ट कैंसल हो जाना डायरैक्शन ऑपोजिट है। EA साइन थीटा EB साइन थीटा इक्वल होंगे क्योंकि इन्हों का मैगनीट्यूड इक्वल है तो फिर कंपोनेंट किहड़ा रह जाएगा सिर्फ एक्स एक्सिस विच दोनों काम कर रहे हैं जो कि EB कॉस थीटा ते EA कॉस थीटा दोनों लाइन्स पैरेलल दा सिंबल सी। हुण जो नैट होएगा कि इस डायरैक्शन दे विच ही फॉलो कर रहा इलैक्ट्रिक फील्ड दा तो असीं उसनूं E नाल रिप्रजेंट करांगे। नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की है E। नेट इलैक्ट्रिक फील्ड की हो गया E इज इक्वल्स टू EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। सिर्फ असी एक्स एक्सिस का फैक्ट लवांगे। हुण EA ते EB दियां वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं। टोटल E की है EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। EA ते EB का मैगनीट्यूड इक्वल है दैन असीं इत्थे पुट कर सकते हैं EA कॉस थीटा प्लस EA कॉस थीटा यानी 2 टाइम्स EA कॉस थीटा। EA की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर X
स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ਆਪਾਂ जस्ट मैगनीट्यूड ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਪੋਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 2a ਆ ਔਰ ਜੋ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ x ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ a ਔਰ r ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a ਐਂਡ r ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਆ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਡਰॉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਓ ਪੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਓ ਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਪੀ ਏ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਓ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪੀ ਓ ਸਕੁਅਰ। पी ए ਦਾ ਸਕੁਅਰ एक्स ਸਕੁਅਰ इज इक्वल्स टू वैल्यू सबस्टिट्यूट करो ए ਸਕੁਅਰ प्लस आर ਸਕੁਅਰ और x ਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए ਸਕੁਅਰ प्लस आर ਸਕੁਅਰ। नैक्सट असी इतों कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ। कॉस थीटा की वैल्यू भी असी सेम आही ट्रायंगल ए ओ पी ट्रायंगल विचों कैलकुलेट करांगे। किद्दां? कॉस थीटा की हुंदा? बेस ओवर हाईपोटेन्यूज। हुण 90 डिग्री है, दैन हाईपोटेन्यूज की है एक्स और बेस की है एंगल भी इतने थीटा बन रहा 90 डिग्री, दैन बेस की है ए ओ, यानी कि आ जाएगा ए ओ ओवर ए पी। ए ओ किन्ना ए पी किन्ना एक्स। वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो। हुण एक्स की कैलकुलेट की है इत्थे पुट करो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सारी ने सारिया वैल्यूज इक्वेशन 1 सबस्टिट्यूट कर दो। E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू ए ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू ओवर हुण इत्थे देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 हुंदा। दैन इनू असीं किद्दां सॉल्व कर सकते हैं? जे अगर इदां होवे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, यानी एक्स अंडर रूट एक्स कोई टर्म है, किद्दां सॉल्व करांगे? एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट मतलब बेस सेम पावर जैड 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2 सेम इत्थे अप्लाई होएगा। हुण ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नो अगर सपोज टू बी एक्स हुंदा, दैन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख लिया बाहर। 2 क्यू इत्थे ऊपर सॉरी इत्थे ए भी सी 2 क्यू ए नीचे की बन गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इलैक्ट्रिक फील्ड इन मैगनीट्यूड कैलकुलेट किया। नैक्सट क्यू इंटू 2a आपां पढ़ चुके हैं कि डायपोल मूवमेंट होंदी है, इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो उपर वाले रिलेशन असीं इदां लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a। 2 है जो असीं ए नाल लगा के लिख दिए ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दी पावर 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हुण ये आपां कढ चुके हैं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया इक्वेटोरियल लाइन दे बट इन मैगनीट्यूड। जब असी डायरैक्शन कढनी होवे तां असी किदां कैलकुलेट करांगे? असी ई उपर तो एक सिंपली वैक्टर पा दांगे, बट इत्थे सारी दी सारी टर्म्स कुछ ना कुछ वैक्टर टर्म होनी चाहिए तां ही वैक्टर फॉर्म कन्वर्ट होएगा। तो असी की कीता 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिस्टेंस आ पी सिर्फ वैक्टर क्वांटिटी होएगी मोमेंटम। तो पी नू वैक्टर विच चेंज करने लई सानू कुछ करना पेगा। देखो डायग्राम विच इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की आ बाहर वाल नू, दो वैक्टर्स एक इधर जा रहा ऊपर वाल एक नीचे वाल जा रहा। इलैक्ट्रिक फील्ड नैट इस डायरैक्शन च जा रहा सी। बट डायपोल मूवमेंट की हुंदा आपां पढ़िया कि नैगेटिव टू पॉजिटिव। इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दी प्रॉपर्टीज़ विच पढ़िया सी कि जो
इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल कर दिया, मीनस इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ने इस डायरेक्शन से ट्रैवल करना है, इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, बट इलैक्ट्रिक फील्ड की है इस डायरेक्शन से जा रहा। दोनों का मैगनीट्यूड चाहे सेम होवे बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों इक्वल लिखने लिए असीं की लगा देंगे विच एक नेगेटिव साइन। तो असीं इसनूं वैक्टर फॉर्म च चेंज करने लिए इलैक्ट्रिक फील्ड अगे इत्थे की लगा देंगे नेगेटिव साइन और इत्थे वैक्टर फॉर्म, देने की आ जाएगा इन वैक्टर फॉर्म या इन डायरेक्शन या इलैक्ट्रिक फील्ड इन वैक्टर फॉर्म। नैक्सट असीं एक स्पैशल केस अज्यूम कर लैंदे कि जो लैंथ है डायपोल दी बहुत छोटी है, मीनस ए लैंथ सी डायपोल दी छोटी है, ए बहुत ज़्यादा छोटी है आर नालों, ए दा स्क्वेयर भी छोटा होएगा बहुत ज़्यादा। जो असीं बहुत छोटी टर्म्स कुछ ऐड करते हैं दैन उन्होंने असीं निगलैक्ट कर सकते होंगे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन विच नहीं, बट एडिशन सबसट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होंदी है कि अगर असीं उहदे विच कुछ ऐड बहुत छोटी अमाउंट वैल्यू ऐड करते हैं तो असीं उहनूं निगलैक्ट कर सकते हैं, तो असीं ए स्क्वेयर नूं निगलैक्ट कर देंगे इस टर्म दे विचों। दैन न्यू रिलेशन की आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वैक्टर ओवर आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, और 2 नाल 2 कट हो जाएगा की रह जाएगा पी ओवर आर क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन व्हेन द लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी स्मॉल। थैंक यू।